क्यों हूँ न जाने मैं इस हाल में पड़ा, सोचों से दिल क्यों है भरा, लोगों में रह के भी हूँ क्यों मैं तन्हा। Music has been, my passion from childhood actually, and I think I got my first guitar when I was in grade 6 or 7, and that is when I saw, other kids. They used to play different instruments, but most of them used to quit at a very early age. तो मुझे हमेशा से ये था, if I'm going to learn an instrument, I need to learn it, I need to really learn it. काफ़ी मेरे दोस्त वगैरह थे, they used to have like, guitar tutors and instructors, और मैं YouTube tutorials देख के सीखता रहता था. So I was very passionate about it. That was the initial spark. So it started at a very, early grade 6, grade 7 वाली age पे. So, then we moved on to my O levels. And then that is, when things really started kicking in, because उस time पे music societies का काफ़ी एक वो था कि यार, I need to join a music society and I need to be the president of the music society. और वो बड़ी exciting चीज़ थी, because हम लोग bands बनाते थे and we used to like compete at different events. And then मेरा एक दोस्त था सैफ, we made a duo, and then उस time पे during my A levels we started getting some attention. थोड़ी बहुत फेम आना शुरू हुई उस पॉइंट पे. बट what happened later was he went to Australia, I joined Jiki, and then things started to थोड़ा overshadow होना शुरू हो गया था music, because I basically joined Jiki as a software engineer, basically वो bachelor's in computer sciences, so it's quite a tough degree. तो उसमें if I couldn't dedicate a lot of time to music, so I knew at the back of my head, I knew I had to do it, but बहुत कम time था. So थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते थे university में performances and stuff, but उस तरह नहीं था. So I actually studied very hard. As far as my engineering background is concerned, I was a studious kid, and I had a good GPA. So I think उस point पे पढ़ाई was quite the focus. But eventually, after university ended, and my university ended at a very bad time. It was, COVID was at its peak, और उस point पे I didn't really have a lot of directions, और closure भी नहीं मिला हुआ था. जब university ख़त्म होती है, हर एक को एक graduation ceremony मिलती है चीज़ें. We didn't have any of that. So I knew that was the time that I had to kind of start making my own music and write my own stuff. And basically, yeah, that's pretty much my journey. I think right after my graduation, after 2 or 3 months, I started writing, and one of my friends really convinced me कि भाई तू क्या कर रहा है, तू ज़ाया कर रहा है अपने आप को, you need to get things out there. So that is when I wrote my first song, Fasle, and it was released at the end of December. And yeah, ever since that, I've been making music. So far, I have like 6 songs. And mashallah say I've gained a lot of support from people. I wasn't actually expecting it, and it's going really well now. कब से बहती रही नदियाँ मेरे ख्यालों की, हर पल मैं यूं देता रहा दिल को दिलासे ही. कहानी मोहब्बत की है मुख्तसर, गया दिल से फिर वो ना आया इधर. When I look back और मैं अपनी inspirations वगैरह को भी देखता हूँ, entertainment industry बहुत अच्छी है. Like I really appreciate the people who are working in that, और मेरे बहुत ज़्यादा inspirations हैं इनमें. But I've kind of seen a pattern, especially here in Pakistan, कि एक point आता है कि band split हो जाते हैं, या एक point आता है कि लोग खुद ही छोड़ना शुरू कर देते हैं.
एंड यू नो जो क्रिएटिविटी भी होती है ना, आई फील लाइक उसकी भी एक एज होती है. आप पूरी ज़िंदगी क्रिएटिव नहीं रह सकते, आप पूरी ज़िंदगी अच्छा लिख नहीं सकते. एक अच्छे सिंगर को भी ना पता होना चाहिए कि उसका एग्जिट पाथ क्या हो, कि अगर मैंने यहाँ पीक रख दी है ना तो यहाँ से मेरा एग्जिट हो, इंस्टेड कि मैं यहाँ पे और बनाता जाऊँ एंड यहाँ पे मेरा एंड हो एंड देन नो वन विल रिमेंबर मी. So I think that is very important because that creative spark that doesn't last a lifetime, you know. If I go to events वगैरह तो उसमें लोग आ जाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, they meet me and you know pictures वगैरह भी लेते हैं. But when I meet people मुझे बिल्कुल भी इस तरह की feeling नहीं आती कि you know they're my fans or you know they're dying to meet me. मुझे ये होता है कि यार you know if someone is putting in an effort to come and meet me and if they're trying to take a picture, then they're supporters. They're not. I don't really like the term fans. I'm not an introvert. I am kind of an extrovert, but कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा confuse हो जाता हूँ कि okay this is new, because it is new. अभी again not a lot of people know me at this point. It's all new, but at the same time you know when it's new तो वो आपको पता नहीं होता कि इसको process किस तरह करना है, कहना क्या है, respond किस तरह करना है. So I guess it's part of the process and it's going to take some time. हम तो हारे नाते तुम्हारे क्यों दिल ना माने. My first song Fast Lane because it's very raw, it's very genuine and I think पहला गाना जो होता है वो जनरली भी सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब होता है बिकॉज दैट इज़ द स्टार्ट. एंड अगर पहला गाना ही अच्छा ना होता, लोगों का कॉन्फिडेंस ना होता उस चीज़ में, तो शायद वो आगे जितने मर्जी अच्छे मैं गाने निकालता उसकी उतनी वैल्यू ना होती. सो दिस इज़ द सेकंड वर्स ऑफ दैट सॉन्ग. कैसे हैं मेरे जज्बात कि तुमको देख लूं तो बेजुबान, क्या सही या गलत है ये फासले, वो सोच में आए अब क्यों ये फासले, ये फासले. क्यों न जाने मैं इस हाल में पड़ा, सोचों से दिल क्यों है भरा, लोगों में लेके भी हूँ क्यों मैं तन्हा. जानू ना किस खोज में पड़ा, जानू ना कोई है क्या मेरा यहाँ. प्रोसेस जो इस तरह से है कि आई कम अप विद गुड मेलोडीज एंड व्हेन आई कम अप विद गुड मेलोडीज इट्स अ प्रोसेस कि आप उस मेलोडी स्ट्रक्चर के अंदर वर्ड्स किस तरह लिखते हो. इट्स अ सेल्फ सस्टेनेबल काइंड ऑफ एन इंस्पिरेशन थिंग. जब आप एक अच्छी मेलोडी आपके दिमाग में आती है ना, मैं इंस्टेंटली वॉइस में रिकॉर्ड कर लेता हूँ and then a day later when I listen to it, you know, I'm like, okay, this could be a really good song. I think this is something people will connect with instantly. और फिर खुद ब खुद you know, जब आप इतना ज़्यादा अच्छा एक मेलोडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो अच्छे लफ्ज़ भी आना शुरू हो जाते हैं उसके ऊपर. एंड दैट इज़ यू नो वो एक होता है ना, एक सर्कल है ये कि आप कुछ बनाते हो, दैट मोटिवेट्स यू, दैट इंस्पायर्स यू एंड देन यू नो दैट is like a circle, it's like a cycle. Yeah, of course I do have inspirations, जैसे like West में मेरी बहुत ज़्यादा inspirations हैं. Especially मुझे गिटार रेफरेंसेस बहुत पसंद है. मैं खुद भी एक गिटारिस्ट हूँ एंड यू नो इलेक्ट्रिक गिटार भी बजाता हूँ. सो वेस्ट से यू नो फॉर एग्जांपल जॉन मेयर वगैरह, I've been listening to their songs for you know the longest I can remember.
तो उधर से भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस आती हैं एंड अपना जो मेलोडी वाली चीज़ मैंने भी बताई, सो आई थिंक या दैट इज़ द फ्यूल और दैट इज़ द इंस्पिरेशन। वो मेरे करीब था, वो लम्हा अजीब, उसके रंगों में मैं ढल गया। To be very honest, my family has been indifferent about all of this. I mean, they do enjoy and stuff, but वो बस ठीक है, वो होता है ना अपने घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाला सीन जो भी होता है। Don't exactly know the phrase for that, but yeah, वो आदत हो जाती है क्योंकि बचपन से गा रहे बस गाता रहेगा ये। और असल में भी ना मतलब मैं अक्सर ये रेफरेंस देता हूँ, अगर कोई आप सिंगिंग कंपटीशन जीतो ये वो ना, वो उसकी वो वैल्यू नहीं होती अगर आप डीन्स ऑनर रोल में आ जाओ, ओ गुड वन ये हो। तो ज़ाहिर है पेरेंट्स दे थिंक डिफरेंटली, तो कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे रोका हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। देव ऑलवेज बिन इनकरेजिंग, बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं कहा कि यार सब छोड़ ये कर ले, तो वो भी नहीं हुआ। और जो इवन जो कोलैबोरेशंस भी हैं, दे नॉट पीपल फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, दीज आर यंग किड्स, यू नो। रवालियो इज़ 20 years old and we just, you know, इंस्टा पे हमने रैंडमली बात की, he sent me a few beats and then we vibed and that is how a few songs came to life. पिच की जो पहचान होती है ना, सुर जिसे कहते हैं, उस सुर के दायरे के अंदर रहते हुए अगर कोई गा रहा है तो अच्छा सिंगर है। और एक चीज़ ये होती है, अच्छे सिंगर्स बहुत होते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान में ना एक अच्छी वोकल टोन और एक यूनिक वोकल टोन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू कि वो कितना सुर में और वो कितनी ही लर्जिशें कर सकता है। ये मैंने नोटिस किया जनरली आजकल के गानों में। कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूँ दिल वीरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ है, ज़ाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने ज़ाहिर करूँ क्या है जो मेरे इरादे, मेरे इरादे। The message would be to stay connected to your creative side if you do have it, because you don't know when you lose touch of it, when you lose it completely. तो जब तक आप कर सकते हो 30, 35, 40, जब तक आप वो spark है, just stay true to your creative side. That is my message, because if you lose that, then life is going to be very dull and boring.